We want to congratulate our Ma Mati Manush, means all the people of this country and my state. They voted for us. We fought against money power, muscle power, mafia power, all the agencies power, and what not. The central government fully, they came in Bengal just like a daily passenger. Instead of all the odds, we won the battle because it is not only the Bengal have voted for us, and you people from throughout the country, throughout the state, even some parts of the world, you people have gave us blessings and you watch our election. Thank you so much. These BJP people, they want only dictatorship. They don't allow other people to organize the program even. In Tripura, they didn't allow our people to organize the rally. Is it the democracy? After the election, you are shouting for post-poll violence. Nothing happened in post-poll violence. What is the institution? You destroyed all the institution in this country. Some BJP member, they became the Human Rights Commission member and they submitted their report totally wrong. It is a pre-poll, it is not post-poll. And all the nationwide, the people must know it, that how West Bengal suffered this time. In my election, I have seen from officer in charge to returning officer, observer to SP, all are changed. Only BJP has got the election commission blessing, just election commission office. I do not know how they are pressurized. They became just like a BJP party office. The democracy is in dangerous situation, I am telling all of you. I do not know what will happen in 24. But from now, we have to start our working, our planning from now. Though I know our phone is totally tapped, not only tapped, it is just like a recorder. They are behaving. Pegasus, dangerous, ferocious. They have forgotten. They allow people to live peacefully. They are harassing the people. Their dictatorship is too much. And do you know, I cannot talk to Chidambaramji because my phone will be tapped. Sometimes, if I wish, I cannot talk to Sharad Pawarji. I cannot talk to even Delhi Chief Minister. I cannot talk to Shiv Sena Chief Minister. I cannot talk to Andhra Pradesh Chief Minister. I cannot talk to Odisha Chief Minister. Why? What Pegasus? Instead of giving money to the poor, you are spending lots of money for spygiri. Spying, beating, killing, and talking too much, doing nothing. Petrol price, diesel price, petroleum products, 3.7 lakh crores. Government of India collected 3.7 lakh crores from the public pocket. And where they are spending this money? The people are not getting even vaccine, medicine. Where is the PM Care Fund? Who is taking care for that? And now because of Pegasus, can you imagine? I have done one thing, I am showing you. देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया. क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है. हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया. एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा. देश को बर्बादी हो जाएगा. किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, केउ काउके विश्वास करते पाচ্ছে না. Even central government, I am sorry to say, your ministers, their phone is also blocked. स्पाईगिरी चल रहा है. मिनिस्टारेर फोन पेगासास ঢুকে গেছে. অফিসারদের ফোন Pegasus captured. All leaders' phone Pegasus captured. All judges' phone, maximum judges' phone is also captured. Now, গণতন্ত্রের তিনটে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে ডেমোক্রেসি. If we love our democracy, our founding father, they strong our democracy, and India is one of the largest democracies in the world. But now, because of this government of India, the BJP party, they bulldoze the democracy, they have finished the federal structure.
They have finished the democratic rights. Three main pillars in democracy. One is election, means democracy. Two, media. And three is judiciary. Now your Pegasus captured election process, captured judiciary, captured the political party leaders, captured the media houses. Now whatever you will say, every institution has to do it. Otherwise, you will show them, you will blackmail them with Pegasus to ferocious, to dangerous. सर्वाइलेंस स्टेट करने चाहते हैं आप, इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट, इसको सर्वाइलेंस स्टेट करने चाहते हैं। आज आप लोगों को कहना चाहिए, आज हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए। हमारा क्या सेल्फ इंटरेस्ट है वो हम भूलने चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि है देश को बचाना, है कि इंटरेस्ट है जनता को बचाना, एक ही इंटरेस्ट है हॉट स्टेट को बचाना, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना। কোভিড নিয়ে দেশকে শেষ করে দিয়েছে। সেকেন্ড কোভিড কাউকে বুঝতে দেওয়ার আগেই 4 লক্ষ প্রাণ অকালে ঝরে গেছে। কোভিডে ভ্যাকসিন নেই, मेडिसिन नहीं, ऑक्सीजन नहीं। कोविड में मर जाता है तब गंगा में डेड बॉडी भेज देता है और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूपी इज द बेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। शर्म नहीं लगता है? कोई शर्म नहीं लगता है कि एक तो मेडिसिन नहीं देता है, वैक्सीन नहीं देते हैं, उसको बाद मरने के बाद क्रिमेशन भी नहीं करने देता है, अंतिम संस्कार भी नहीं करने देता है, मृतदेह को सम्मान पर्यन्त जानाते दाओ ना তোমরা। সমস্ত ডেড বডিগুলো গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছো। কখনো বিহার তুলেছে, কখনো বাংলা তুলেছে। আমরা তাদের আবার সসম্মানে हम लोगों ने डेड बॉडी को जब हमारा बंगाल में आया तो हम उसको क्रिमेशन का बंदोबस्त किया। ये हमारा थोड़ा ही काम है, आपका यूपी का काम था, आपने नहीं किया, लेकिन आप बड़ा बड़ा बात करते हैं। तो आज देश में क्या है, कोविड में आपका फेलियर मोनुमेंटल फेलियर है। কোভিডে মনুমেন্টাল ফেলিওর হয়েছে আপনাদের। আপনাদের জন্য 4 লক্ষ লোক মারা গেছে, কেউ একটা অক্সিজেন পর্যন্ত পায়নি। সেকেন্ড কোভিড আমরা কন্ট্রোল করতে পারতাম যদি সঠিক সময় ব্যবস্থা নিতাম। ইনস্টেড অফ টেকিং কেয়ার অফ কোভিড, সেকেন্ড কোভিড ইউ কেম অ্যাজ এ ডেলি প্যাসেঞ্জার এভরি ডে इन बंगाल टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, टू डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। आपने क्या सोचा था कि आप पेगासस लिया है, आपका पास बहुत मनी पावर है, आपका पास मसल पावर है, इसी के लिए जो भी मर्जी बंगाल को जोर जबरदस्ती से आप कैप्चर करेंगे। लेकिन बंगाल का जनता समझ दिया आपको कि देखो ऐसा नहीं है। बंगाल हर दफे चाहे आजादी हो, चाहे हर तरह मूवमेंट हो, जैसा पंजाब ने लड़ाई किया, बंगाल ने लड़ाई किया, महाराष्ट्र ने लड़ाई किया, हर स्टेट ने लड़ाई किया, ऐसा लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार है। आज बंगाल दिखा दिया। आज हॉट स्टेट को मैं विनती करने चाहूंगी, हॉट लीडर लोगों को, जाइए आपको पार्टी को समझाइए, सब एक साथ में काम करने के लिए एक फ्रंट बनाइए और एक फ्रंट से अभी से प्लानिंग कीजिए। अगर आफ्टर डेथ कम्स द डॉक्टर, कुछ नहीं होता। अगर डिजीज होने का साथ साथ में आप डिजीज को रुकने के लिए कोई बंदोबस्त करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं ठीक से, तो पेशेंट अच्छा हो जा सकता है। तो अभी आपका टाइम है, जितना दिन आप वेस्ट करोगे इतना दिन ही नष्ट होगा। नेक्स्ट वीक में हम भी दिल्ली में जाने वाला हो 2-3 दिन के लिए, कि पार्लियामेंट जब चलते हैं सबको साथ भेंट होता है, इसी के लिए हम बराबर करते हैं। 2 साल से मैंने भी नहीं जा पाया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट द इम्पोर्टेंट अपोजिशन लीडर्स। अगर ये टाइम में शरद जी आप है, आप उधर में चिदम्बरम जी सब वगैरह वगैरह सब है, आप लोग सोच लीजिए। अगर आप लोग एक मीटिंग बुला सकता है तो वी कैन अटेंड 26 और 27 और 27, 28, 29, ये 3 दिन में अगर आप एक मीटिंग कर सकता है तो हम लोग एटलीस्ट वी कैन सिट टुगेदर, एटलीस्ट वी कैन टॉक व्हाट वेयर द कंट्री इज गोइंग ऑन। आप लोग को सबको ईद मुबारक है। अच्छा रहिए, खुदा आप लोगों को अच्छा रखे, आपको सबको अच्छा रहे। सब हर धर्म, हर वर्ण, हर कम्युनिटी मिलके एक साथ में हम यूनाइटेड इंडिया करने चाहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाहे हिंदू है
चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई है। त्यागों का त्याग के नाम होच्छे हिंदू, त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़वार जोन्नो आज हमारा आजादी खतरा में है। आजादी को बीजेपी लोगों ने खतरे में डाला है और बीजेपी का सिंडिकेट आज देश को इतना खतरा में डाला है कि आज मिनिस्टर को, उनका खुद मिनिस्टर को भी विश्वास नहीं करते हैं। कोई ओपोजिशन पार्टी को तो भूल जाइए, सबको तंग करते हैं, सबको घर में एजेंसी भेज देता है, हर तरह सेंट्रल एजेंसी को मिसयूज करता है। और जोगी तो ऐसा बड़ा नेता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जिसने नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम जिसने लिखा है, सॉरी नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र ने लिखा था, वंदे मातरम, नेशनल एंथम इंडिया बांग्लादेश का लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर, और रविंद्रनाथ का ठाकुर का नाम भी एजुकेशन सिलेबस से निकाल दिया है। यही तो उसका काम है। कोई कोई मेरे को पूछता है बीजेपी कैसा पार्टी है। मैं तो कहने चाहूंगी कि बीजेपी एक हाई लोडेड वायरस पार्टी है। कोरोना का वायरस अब देखा, इससे बहुत सारे ज्यादा वायरस बीजेपी पार्टी में है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेकारी बेड़े गेছে, शुद्ध गोली चलाओ, सबको मर्डर कर दो, यही तो पॉलिटिक्स चलছে। गोली और गुली और गाली पॉलिटिक्स चलছে। এইভাবে দেশ চলতে পারে না। ফোন ক্যাপচার করছে, করে আবার বলছে যা করেছি ঠিক করেছি। মাই হাম্বল রিগার্ডস টু আওয়ার অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট। উইল বি everybody have a great respect for you. Can't you take a suo cognizance, sir? I appeal to my Supreme Court judges. Can't you take a suo cognizance when judges' phones are tapped? All political parties' phones are tapped, cloning fully. Phone have become the recorder. If you take your phone and talk to your housewife even inside the room, that is also recorded. Everything is recorded. Sir, either एक सुओमोटो केस आपने मेहरबानी करके देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, नहीं तो आप एक सीट बना दीजिए जो आपका अंडर में काम करेगा, जो मॉनिटर करेगा किसका किसका फोन में ऐसा हुआ। हमारा फोन तो हुआ सर, अगर अभिषेक को फोन में हुआ तो हम तो उसका साथ बात करते हैं तो हुआ, पीके का फोन में हुआ तो हम तो उसको साथ बात करते हैं तो पूरा हमारा हुआ। ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ बात करते हैं, उसका भी हुआ। आप लोगों ने भी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को हुआ। वो तो रंजन गोगोई का केस अब देखा आया, ऐसे हर केस है। जुडिशियरी को टच करने सब डरते हैं, इसी के लिए सब नाम सब फोन नहीं दे सकता है, लेकिन दे तो दिया। ऐसा ही हुआ। इसी के लिए आज लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो जुडिशियरी बचा सकता है। अगर लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो देश का जनता ने बचा सकता है। अगर लोकतंत्र को बचा सकता है तो वी द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया वी मस्ट कम फॉरवर्ड, वी मस्ट कम टुगेदर, नहीं तो जनता हमको क्षमा नहीं करेंगे। मैं फिर भी आपको कहने चाहूंगी, प्राइसेस द्रव्य मूल्य कत बेड़े गेছে, प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग, इकोनॉमी इज इन अ बैड शेप, industry is just declining, unemployment is increasing, migrant workers just crying, women and children you shout most in Bengal, mother of thieves are shouts most, चोर की माए जोर से बोले। और देखिए यूपी का हाल, उन्नाव से लेकर हाथरस तक क्या नहीं हुआ। बड़ा बड़ा बात करते हैं आप। आज भी किसान लोग 7-8 महीने से बैठे हैं, उसको बात सुनने का लिए भी कोई नहीं है। क्यों वो 3 बिल ले आएगा, किसका लिए? धनवान खजाना भरेगा और किसान रो कर रास्ता का शहीद होगा। इसी के लिए वो 3 बिल आज भी आप लोगों ने विड्रॉ नहीं किया। अभी भी मैंने सुना बहुत सारे बिल आप अमेंडमेंट करने चाहते हैं, बहुत सारे बिल आप ले आने चाहते हैं जिसमें डेमोक्रेसी टोटल बुलडोज हो जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं?
বিজেপির মাথায় শুধু মগধে মরুভূমি, মগধে মরুভূমি ছাড়া আর কিছু নেই। ওরা মানব অধিকার কাকে বলে জানে না, ওরা মানবিক কাকে বলে তারা জানে না। শুধু ফোন স্ট্যাপ করলে আর স্পাইগিরি করলেই সব কিছু হয় না। শুধু এজেন্সিদের কন্ট্রাক্টর হয়েছে, অল এজেন্সির কন্ট্রাক্টর হয়েছে আজকে। ताई हमको पता नहीं है, सेकेंड वेव तो गया, अभी भी चल रहा है, थर्ड वेव क्या होगा पता नहीं है। कोई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई प्लान ही नहीं किया है अभी तक, कोई प्लान ही नहीं किया। प्लान कैसे करेगा? हमारा इधर में 14 करोड़ वैक्सीन का, हमारा वैक्सीनेशन का जरूरत है, हमको खाली 2.12 करोड़ दिया और नहीं दिया। हम 60 करोड़ से बाजार से जितना मिला हम खरीदा 18 लाख हमारा अपना पैसा से स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन बाजार में भी हम नहीं खरीद सकता है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदता है। तो इसी के लिए आज ये परिस्थिति में हमारा देश में अगर 130 मिलियन पीपल है तो ऐसे ऐसे करके वैक्सीन देने से कितना साल लगेगा, कितना साल लगेगा? इसका बाद कोरोना जाएगा तो और एक कुछ आएगा और कुछ वायरल लोड आ जाएगा। इसी के लिए देश का परिस्थिति बहुत खराब है। मोदी जी बुरा ना माने, हम आपको पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, क्यों हमको ये आदत नहीं है। पॉलिटिक्स में एक काटिसी तो होना चाहिए। ये सब काम आप लोगों का पार्टी करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन एक बात याद कीजिए, जितना टाइम आप और अमित शाह मिलके, मेरे को पता नहीं है आपका सब पता है कि नहीं है, न खाली अमित शाह ही करते हैं, मेरे को पता नहीं है कि आपने क्या करता है। आपने पूरा खाली एजेंसी को काम पे लगाता है, ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों को मरते हैं, कानून बना के काला कानून बनाते हैं। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, इसमें आप कभी किसी को सलाह परामर्श तो भी नहीं करते हैं, कभी आप नहीं करते हैं। जितना भी नीचा में गिरना संभव इतना भी नीचे में आप गिरा, तब भी आपको फायदा नहीं मिला। बंगाल में बंगाल का जनता आपको नहीं दिया। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लैंड। वी केयर to the specific needs of each and every state of the society. Women, children, aged, SC, ST, OBC, minority, students, farmers, workers, laborers, hawkers, everyone. But you care only your party. That also you want to bulldoze others to save the party. That is not safe. I believe India needs this model of poor people governance. India needs development. India needs unity. India needs integrity. India needs good performance of the economy, of the industry, of the chambers, of the kishans, of the farmers, of the unemployed youth, for the women and child, for the Dalit, for the ST, for the minorities. India needs all these. This is the main way to work. But you have nothing to do. You have only to do the job. Whoever is doing the work for the people, you want to disturb them so that they should not do anything. In our state, we give free ration. How many states you give the free ration? Mr. Prime Minister, don't disturb us. Give free ration to throughout the country. It will be our promise to the people. If our forum means our front, if it has been decided and if they come to power, we are ready to give free ration to all the individuals in this country. We give the free ration in Bengal. We give full free treatment to the people. It is not Ayushman, only few people. We give Shastro Sati to every family, 5 lakhs rupees in every day, in every month. Every year, in every individual family, 5 lakhs, and government hospital, total free treatment. We gave 10 lakhs smart card, the credit card for the students, for their hostel fees, for their education care, for their tutor, for their this laptop, to everyone. We give all this. We have decided to give the women, for women empowerment, for scheduled caste, scheduled tribe, 1,000 rupees every woman,
in Shastro Shati, as per Shastro Shati data card, and SC, ST will give 1,000, and in general women will give 500 rupees per month to empowerment of the women. We give Kanyasri. Kanyasri became number 1 in United Nations, the first prize they won because of the public award function. Now we are giving Kishans. চাষিদের আমরা 10,000 টাকা করে দিতে শুরু করেছি। जिसका पास 1 एकड़ भी लैंड है हम 10,000 रुपया देता है उसको, और जिसका पास 1 कट्ठा भी है उसको भी 4,000 रुपया मिलता है। एक किसान का मर जाने के बाद हम उसको 2 लाख रुपया देता है। पूरा किसान का जमीन का म्यूटेशन फीस पूरा फ्री है। उसका जो क्रॉप इंश्योरेंस है हम पूरा स्टेट से देता है, किसान का 1 पैसा भी नहीं देने पड़ता है, पूरा फ्री है। इट्स ए मॉडल, बंगाल इज अ मॉडल, गुजरात इज नॉट योर मॉडल। गुजरात इज अ मॉडल ऑफ यू नो बेटर देन मी व्हाट यू हैव डन। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत काम से होता है मोदी जी, मन का बात कहने से नहीं। मन का बात अगर जनता के लिए काम पे हो तो जरूर इसको कहना चाहिए, लेकिन मन का बात अगर पॉलिटिकल पार्टी के लिए खाली ज्ञान देने के लिए हो तो लेसन हम लोगों को बहुत मिल गया, और लेसन का हम लोग को जरूरत नहीं है। Allow our students to read properly, allow our youth to get the job, allow our women to live respectfully, allow our Dalit class, the minorities and others to get their proper respect, allow the political parties to get their proper respect. It is nothing is there. इस स्कैंडल को छोड़ना नहीं, इस स्कैंडल को भूलना नहीं। इस स्कैंडल को अब अगर छोड़ देंगे, शरद पवार आपको छोड़ा, चिदम्बरम जी आपको छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारा पार्टी को तो हर रोज डिस्टर्ब कर रहा है, एवरी डे, ईच एंड एवरी डे। चुनाव का पहले हम एक मीटिंग किया, हमारा साथ फोन था, लेकिन हमको बैठ के मीटिंग किया। हम पीके अभिषेक क्या किया, वो लोगों ने पूरा रिकॉर्डिंग करके लिया। मीटिंग में क्या बोला वो भी ऑडियो था, वीडियो का बात नहीं था, जस्ट ऑडियोबल था। पूछिए, वो पेगासस में पूरा रिकॉर्डिंग करके ले लिया कि पूरा हम मीटिंग में क्या चर्चा किया। अगर ऐसे आप इलेक्शन लड़ोगे तो क्या सोचता है कि जिंदगी भर आपको ऐसे ही इलेक्शन लड़ेगा और ऐसे जनता ने आपको वोट दे देंगे? इतना सुविस्ता बात नहीं है, एतो सोजा नय। मने राखबेन, I respect each and every political party. Even I will appeal all the civic society people also, all the students community, all the college, all the education society, come forward and take a bold step and fight the battle against BJP, and let us be united, and let us unitedly struggle. And I believe struggle has no existence without struggle, no existence. Struggle is our life. Struggle will be success one day if you are united, if you are together.